Morning students, in science we are reading chapter 12, light and shadows. Light and shadows. So light and shadows, I have in our first video we have already discussed about the formation of shadow or what is a shadow. So a shadow is a dark a dark portion. Shadow is a dark region formed by an opaque body. सो देखो लाइट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के तो कितने तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेट अस ट्राई टू नो अबाउट देम. सो let us try to see a lighted electric bulb or candle first through a glass sheet, then through a cardboard piece and finally through a sheet of tissue paper or a butter paper. और एक तो बल्ब जल रहा है, उसको हम सब तरह तरह का सामान से देखना चाहेंगे, है क्या, देखने का कोशिश करेंगे. तो पहले से कैसे देखेंगे लाइटेड बल्ब को, थ्रू ए ग्लास शीट. फर्स्ट थ्रू ए ग्लास शीट में दिखाई देगा. लाइटेड बल्ब कैन बी सीन थ्रू ए ग्लास शीट. उसके बाद क्या, कार्डबोर्ड पीस अगर पकड़ेंगे है ना आँख का सामने, तो क्या बल्ब दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा. सो कार्डबोर्ड पीस विल नॉट अलाउ द लाइटेड बल्ब टू सी. और उसके बाद क्या, तो टिश्यू पेपर या बटर पेपर, जो कि क्या इसमें पास थ्रू लाइट में पास थ्रू इट, तो उसमें हमें हल्का फुल्का दिखाई देता है ना, कम दिखाई देगा. सो ग्लास शीट में पूरा दिखाई देगा लाइटेड बल्ब को, बटर पेपर में हल्का दिखाई देगा, और कार्डबोर्ड शीट के जरिए कुछ नहीं दिखाई देगा, नथिंग कैन बी सीन. तो इसी हिसाब से, सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी. सो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये हाउ मच लाइट एन ऑब्जेक्ट कैन, हाउ मच लाइट can pass through any object. So what do we observe? The lighted electric bulb is clearly seen through glass sheet and are not seen at all through cardboard piece, not seen at all through a cardboard piece, and only partially through tissue paper or butter paper, ठीक है. Materials or objects like the glass sheet, water. So materials or objects like the glass sheet and water and some form of plastic that allow light to pass through them almost completely are called the transparent objects. So what are transparent objects? Materials or objects like glass sheet, clear glass sheet, water, and some form of very thin plastics or colorless plastics that allow light to pass through completely are known as the transparent object. So what are transparent object or transparent materials? The materials through which light can pass through completely are called transparent material. ओके, एग्जाम्पल तो दिया हुआ है. और देखो, व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स? द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास थ्रू एट ऑल आर कॉल्ड द ओपेक ऑब्जेक्ट्स. तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, कार्डबोर्ड हो जाएगा, तुम्हारा ये वॉल हो जाएगा. Our body is opaque object. Okay, so these are various through opaque object light cannot pass through. Then translucent object, TRANSLUCENT, translucent object. इसमें ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हल्का लाइट पास हो सकता है. So these are the objects through which light can pass through partly. थोड़ा सा लाइट पास होगा, पूरा डार्कनेस नहीं होगा या ऐसा. So these are the three types of materials according to transparency of light, that is property of passing light. Now to demonstrate that light propagates along a straight line path. देखो, लाइट हमेशा सीधा चलता है, लाइट बेंड नहीं होता है, ठीक है. अब बेंड नहीं हो पाता है, इसलिए शैडो फॉर्म होता है. Formation of shadow by opaque object is because of the fact that light cannot bend its path. Light always moves in a straight line. तो देखो, take two equal size rectangular, square और cardboard pieces, keep them top of each other. तो हम सब बराबर साइज का क्या कार्डबोर्ड पीस लेंगे और एक के ऊपर दूसरा रखेंगे, 2 या 3 भी ले सकते हो, और उसके बाद एक कांटी गाड़ेंगे. देन वी शैल फिक्स ए नेल, है ना, एट ए पॉइंट ओवर ऑल द 3 कार्डबोर्ड्स एट ए टाइम, एक साथ, है ना, एक साथ उसमें होल बनाएंगे, ठीक है. तो एक ही हाइट में होल बनेगा तीनों कार्डबोर्ड का. सो मेक ए क्लीन होल थ्रू दीज पीसेस साइमल्टेनियसली, है ना, एक ही साथ तीनों कार्डबोर्ड में होल बनाओ. पुट दीज पीसेस वर्टिकली ऑन ए सुटेबल स्टैंड एंड एडजस्ट देयर पोजीशन सो दैट द होल्स ऑन द 2 pieces और 3 pieces आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन. और उसके बाद एक तो टेबल टॉप में हम सब खड़ा करेंगे सो दैट द होल्स मेड ऑन द कार्डबोर्ड इज एट द सेम हाइट. सब एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में होल्स हो जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में. एक हाइट में अगर होल रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बना देगा सारे होल मिलके. सो now place a lighted candle on one side
in such a way that its flame can be seen through its flame can be seen through its flame can be seen through the second hole from the other side. तो अब हम देखो इधर ये लाइटेड कैंडल है और ये सारे कार्डबोर्ड से हम 2 से 3 भी ले सकते हैं, लेकिन सब होल्स एक हाइट या एक पैरेलल लाइन में होना चाहिए। तो अब इधर से अगर आंख रखेंगे तो दिखाई देगा। इफ आई ट्राई टू लुक एट फ्रॉम दिस एंड द लाइटेड कैंडल कैन बी सीन। द मोमेंट टू डिस्टर्ब एनी वन ऑफ दिस कार्डबोर्ड पीसेस इवन स्लाइटली, और एक को थोड़ा दाएं बाएं शिफ्ट कर देंगे या ऊपर नीचे कर देंगे तो होल तो एक लाइन में नहीं रहेगा, तो लाइट कैन नॉट पास थ्रू द होल। तो अब तो लाइटेड कैंडल नहीं दिखाई देगा। कैंडल तभी दिखाई देगा जब लाइट हमारा आँख तक पहुंचेगा। तो अगर एक कार्डबोर्ड को कोई एक कार्डबोर्ड को चाहे आगे वाला हो, पीछे वाला हो, बीच वाला हो, अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे तो होल्स तो एक लाइन में नहीं रह जाएगा। देन लाइट कैन नॉट पास थ्रू ऑल द होल्स, सो द कैंडल कैन नॉट बी सीन। यानी हमारा एक डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारा उसके चलते हमारा लाइट हमारा आँख तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना, रुक जाएगा किसी ना किसी के चलते। इसलिए लाइटेड कैंडल कैन नॉट बी सीन। तो इसीलिए दिस शो दैट लाइट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो अगर लाइट बेंड होता है तो अब तो दिखाई देगा, है ना। लाइट अगर बेंड होता है तो कहाँ होल्स जहाँ भी रहो वहाँ पास होगा और कैंडल हमें दिखाई देता। तो चूंकि कैंडल नहीं, एक तो अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कर देना होल्स को, अगर एक लाइन में नहीं रह रहा है ना, तो लाइट नहीं पार हो पा रहा है ना। अगर होल्स थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, हाँ, चाहे ऊंचा नीचे हो गया, चाहे दाएं बाएं अगर होल हो जाएगा तो वी कैन नॉट सी द कैंडल। तो कैन नॉट सी द कैंडल बिकॉज लाइट इज नॉट रीचिंग फ्रॉम द कैंडल। हाँ, किस चीज को देखते हैं, जिससे लाइट हमारा आंख तक पहुंचता है उसको दिखाई देता है। तो होल से एक लाइन में नहीं होने के चलते क्या हो रहा है, कैंडल नहीं दिखाई दे रहा है। तो होल से एक लाइन में है यानी स्ट्रेट लाइन में है, तो यानी लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट कैन नॉट बेंड। अगर बेंड होता तो डिस्प्लेस होल्स को डिस्प्लेस करने से भी दिखाई देता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये ही एक्सपेरिमेंट है। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट light always travels in a straight line path. If the holes are in a straight line, then only the candle can be seen. Okay, now shadows. We all have experienced that during early morning or evening when we are walking or jogging in the park, something always follows and accompanies us. जब भी हम सब देखो सुबह का टाइम या शाम का समय है ना, when the sun is just above the horizon, formation of shadow take place. Formation of shadow of the trees or animals or human being are found to form. shadow बनता है, जैसे कि यहाँ शेडो दिखाया है, ये स्क्रीन है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, आदमी ठो, और लाइट इधर से आ रहा है, इधर से लाइट दे रहा है फोकस, तो शेडो पीछे बनता है। एक साइड लाइट और दूसरा साइड शेडो बनता है ओपेक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। यानी शेडो इज फॉर्म ऑपोजिट टू द लाइट सोर्स। लाइट अगर दाहिने है तो शेडो बनेगा बाएं, ठीक। लाइट अगर आगे है तो शेडो होगा पीछे, ठीक है, ऑपोजिट साइड। सो इट समटाइम्स शेडोज जॉगिंग इन अ पार्क, समथिंग ऑलवेज फॉलोज एंड अकम्पनीज अस। तो डार्क एक तो शेडो तुमके साथ चलते रहेगा। इट इज समटाइम्स लॉन्गर एंड समटाइम्स शॉर्टर देन अस। कभी कभी बड़ा होता है, कभी कभी छोटा होता है। Can you identify what is this thing that always that keeps on accompanying us? तो ये कह सकते हैं ये क्या है, ये जो डार्क पैच है, डार्क कलर है, ये क्या है ना, वी कॉल इट आवर शेडो। तो यही हमारा है ना डार्क इमेज फॉर्म है ना, और डार्क एरिया फॉर्म बाय आवर बॉडी इज द शेडो ऑफ आवर बॉडी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। तो शेडो तो कैसे बन रहा है। वी नो दैट लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स, है ना। ओपेक ऑब्जेक्ट्स जरिए लाइट, हम सब थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ लिए हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के जरिए ओपेक थ्रू लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स, है ना। लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो तब उसका शेडो बनेगा। We know that light cannot pass through, hence when such an object comes in the path of a beam of light, तो लाइट का रास्ता में अगर ओपेक ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, then they mark a dark region on a screen kept behind them। तो उसका पीछे जो स्क्रीन होगा उसमें एक तो डार्क पैच, डार्क रीजन बनेगा, है ना। इट इज दिस डार्क रीजन और पैचेस दैट वी कॉल शेडोज। ये डार्क एरिया जो बन रहा है स्क्रीन में, दैट इज द शेडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। तो चलो अब व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो। शेडो कब बनेगा या शेडो बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हाँ, व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स, एसेंशियल थिंग्स नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो, है ना। और व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर शेडो फॉर्मेशन। ना ये शेडो, देयर मस्ट बी a source of light. For formation of a shadow there must be a source of light, and second an opaque object. Opaque object इसका shadow बनेगा, और the screen to form the shadow or to lay the shadow, to show the shadow.
the screen or ground or wall to obtain the shadow. Since a torch, shine a torch over a piece of cardboard or wood, its shadow can be seen on the opposite wall or on the ground. तो एक तो तुम्हारा टॉर्च जलाया हो और उस टॉर्च का लाइट का रास्ता में तो कार्डबोर्ड पकड़ो तो उसका शेडो बन जाएगा ऑपोजिट साइड में, कहीं दीवार में है ना, कार्डबोर्ड के पीछे जो स्क्रीन होगा, दीवार हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ शेडो बनेगा. Okay, the phenomenon of formation of a shadow tells us that light ordinarily propagates in straight line. The phenomenon of formation of shadow tells us that that light ordinarily propagates in a straight line. The shadow formation क्यों होता है ना, वही light travels in a straight line. Light cannot bend its path. देखो यहाँ अगर लाइट, यहाँ इधर से लाइट आ रहा है, अगर बेंड हो जाता तो ये लाइट अप हो जाएगा, डार्क रीजन नहीं रह जाएगा. तो डार्क रीजन हट गया तो मतलब शेडो हट गया. तो लाइट अगर बेंड होता तो शेडो फॉर्मेशन होता ही नहीं. So since light cannot bend its path, therefore the shadow is formed at the back. कोई भी चीज का पीछे अंधेरा बनता है, छाया छाया बनता, डार्क स्पेस, डार्क रीजन बनता है, that is the shadow. The phenomenon of formation of shadow tells us that light ordinarily propagates in straight lines. Shadows are formed because light moves along a straight line path and is not able to bend its path around large obstacles. ऑब्स्टैकल्स मतलब कोई बाधा को वो क्या बेंड करके डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा. तो देखो शेडो फॉर्मेशन, ये दिस इज कॉम को खड़ा करके रखे हो तो उसका शेडो पीछे तरफ बन रहा है. दिस इज द लाइट, द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट्स शेडो. बन गया ना, टेबल में ही बन जाएगा उसका. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Why does the torch cast a shadow? With the help of a friend, pass thin string through the comb and hold it straight between your hands. The hold the string direction light region. तो इस तरह से we can see light moves along a straight line path. When it gets blocked by an opaque object, the shadow is formed. This is because light cannot bend around the obstacles. So shadows are formed because light cannot bend, light moves in a straight line. और देखो शेडोज के, तुम्हारा उंगली का शेडो तुम सब बना के कोशिश करो, टॉर्च लगाओ उंगली में और तरह तरह का तुम सब इमेज दिखा पाओगे, है ना. कभी का ये करोगे तो कुत्ता जैसा भौंक रहा है, किसी के कुत्ता का कान महसूस होगा, तुम्हारा उंगली ही है, लेकिन दे विल रिजेंबल दिस टाइप ऑफ इमेजेस. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडोज. तब शेडो का लक्षण क्या होगा? हाँ, जैसे कोई भी चीज का होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, माई नेम इज दिस, माई एज इज दिस, है ना, आई एम ए टीचर, दीज आर माई कैरेक्टरिस्टिक्स. वैसा ही किसी भी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लक्षण होता है या प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स शेडोज का गुण क्या है ना, size of the shadow of a given opaque object depends upon the relative position of the source of light and the opaque object that is acting as an obstacle. So size of the shadow of a given object depends upon the relative position of the source of light and the opaque object. Okay, देखो ओपेक ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट का दूरी पर निर्भर होगा शेडो का साइज कितना होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट, if the distance between the source of light and the opaque object is more, the shadow is small. If the distance between the source of light and opaque object is less, then the shadow will be bigger. Okay, now shadow of an opaque object is always black irrespective of its colors. अब कार्डबोर्ड को, जैसे कार्डबोर्ड का हम सब शेडो बना रहे थे, तो कार्डबोर्ड अगर कलरफुल पकड़ेंगे तो उसका शेडो क्या कलरफुल होगा? नहीं, कलर शेडो तो ब्लैक ही होगा. शेडोज फॉर्म आर ऑलवेज ब्लैक इन कलर. तो वही देखो, यहाँ देखो दो ठो डायग्राम बनाया. दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स, ये ओपेक ऑब्जेक्ट देखो. और तो ओपेक हम टॉर्च को एक ही पोजीशन में रखेंगे, स्क्रीन को भी एक ही दूरी पर रखेंगे, टॉर्च और स्क्रीन का दूरी सेम है. लेकिन ये ओपेक ऑब्जेक्ट को हम इसका डिस्टेंस को क्या घटा बढ़ा करेंगे. आई शैल चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट देखो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो ये टॉर्च का नजदीक है, ये टॉर्च का दूरी है. तो जब दूर है ओपेक ऑब्जेक्ट तो उसका शेडो किस स्क्रीन में बन रहा है, ये स्क्रीन है, शेडो बन रहा है छोटा. और जब ऑब्जेक्ट है नजदीक, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द सोर्स ऑफ लाइट, देखो ये दूरी घट गया, ये दूरी ज्यादा है. डिस्टेंस बिटवीन टॉर्च एंड ओपेक ऑब्जेक्ट इज मोर, हियर द डिस्टेंस बिटवीन द टॉर्च एंड ओपेक ऑब्जेक्ट इज सेम ओपेक ऑब्जेक्ट इज लेस. तो उसका शेडो तो अब कितना बन रहा है, शेडो बड़ा बन रहा है. तो जैसा ही ये ओपेक ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते रहेंगे तो उसका शेडो बड़ा होता चला जाएगा. नजदीक ला रहा तो बड़ा हो रहा है. So if the distance is more, the size of the shadow is small. If the distance is less, the size of the shadow is bigger. ठीक है, तो यही दिखाया हुआ है. So let us finish up to here. This is your SW. Draw the formation of shadows. ठीक है, दूरी देखो, टॉर्च का पोजीशन सेम है, इमेज भी सेम है. इसके बीच में हम दूरी को वेरी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को चेंज करा रहे हैं पोजीशन को. तो
तो पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट दूर है लाइट से तो शेडो छोटा हो रहा है, और अगर लाइट का नजदीक ऑब्जेक्ट रखेंगे पकड़ेंगे तो उसका शेडो बड़ा होगा। थैंक यू।